Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss on textual exercise of the lesson The Day the River Spoke. This lesson is taken from CBSE Board's 7th Standards English textbook. So here we shall discuss textual exercise, and these exercises are: let us discuss, let us think and reflect, answer and following questions, let's learn, let's speak, let's write and let's explore. So all these activities and their answers are given in this video. So you have to watch this video from start to end. And one more thing is that already this lesson is detailed explained English as well as in Hindi. If you haven't watched that video, you can watch. It's a link is given in the description box. So let's go for the textual exercise. Now the question, first activity, that is let's discuss, and first question is, what was Janvi's dream? Was it important to her? Why? Answer: Janvi's dream was to go to school and learn to read and write like her brother Gopi, which is she called Etan, and her sister Meena. She wanted to know many things like why spiders are yellow on yellow flowers, why bamboo trees make sounds, and why the moon comes from behind the hills. This dream was very important to her. She was not allowed to go to school for many years. She had to stay home and take care of her younger brothers. Even though people said she was so small, she never gave up. She really wanted to learn. Her dream gave her hope and made her feel stronger inside. So this type of answer you can write. Next question, do you think the river can help her in fulfilling her dream? How? Answer: the river cannot help Janvi directly by taking her to school, but it plays an important symbolic and emotional role. The river listens to her, encourages her and gives her the confidence she needs to try. When Janvi says she is scared, the river reminds her to her courage and helps her believe in herself. This emotional support helps her take the first brave step of going to school on her own. So while the river doesn't fulfill the dreams itself, it helps empower and to fulfill on it her. यानी कि रिवर उसे पूरी तरह से डायरेक्टली फुलफिल नहीं कर सकती, लेकिन उसको एनकरेज और करेज और एक ट्रस्ट उसे दे सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप लेने के लिए. सो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज लेट्स डिस्कस. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद जानवीज क्वेश्चन. हियर कॉलम 1 में जानवी के कुछ क्वेश्चन दिए हैं एंड रिवर्स आंसर्स इन कॉलम बी. कॉलम 2 में जानवी रिवर के रिप्लाई और आंसर दिए. अभी हमें ये कंप्लीट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी इज गिवन हियर, व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स. अभी इस क्वेश्चन का आंसर रिवर ने क्या दिया होगा. अभी यहाँ रिवर ने आंसर दिया, उसका क्वेश्चन क्या होगा, ये डायरेक्टली हम आंसर देखेंगे. राइट, व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स एंड आंसर river has given, it goes down toward the sea, over the mountains and down to the sea like the river. और कैन आई डू समथिंग, जो यहाँ आंसर ऑलरेडी दिया था, कैन आई डू समथिंग, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज द लिटिल बॉयज़. और जो रिवर ने आंसर दिया था वो ये इस तरह से था, बिग बोट सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स एंड शाइन ऑल नाइट. अब इसके लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है जो कि जानवी ने पूछा था, और वो क्वेश्चन है व्हाट आर शिप्स. इसका ये आंसर है. अब जो क्वेश्चन यहाँ दिया था, जानवी ने जो पूछा, विल दे कम हियर, इसका आंसर रिवर देती है, आई एम अफ्रेड नॉट, टू लार्ज यू नो, Chandu's catamaran is good enough for me. So this type of answers you can write or complete a table. Now next activity, let's think and reflect. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन. यहाँ कुछ लेसन में से लाइन्स दी है और वो लाइन्स इस तरह से है, यू शुडंट क्राई, जो कि रिवर बोलती है, यू नो द वॉइस वेंट ऑन एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस. सो इस लाइन आप डिटेल में देख सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने दिया था. और उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट. The river tone of the river, the tone of the river in the given extract. जो रिवर जिस तरह से उसका टोनिंग है वो क्या था, एश्योरिंग या सिंपैथेटाइजिंग है. तो इसमें उसका टोन क्या है जो इस लाइन्स में हम दिखा देता है, द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज एश्योरिंग. एश्योरेंस से उसको एक ट्रस्ट देती है, एनकरेज करते हैं. सो एश्योरिंग इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट,
Select the phrase from the extract which shows that Janvi was frequent visitor to the spot. वो हमेशा उस रिवर के बैंक या किनारे आते, वैसे कौन सी लाइन है? तो दैट लाइन इज व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वे ऑलमोस्ट एवरी डे. सो दिस लाइन इंडिकेट और दिस फ्रेज इंडिकेट दैट जॉनी वॉज फ्रीक्वेंट विजिटर टू दैट स्पॉट. Next, choose the correct option to complete the sentence. The use of exclamation mark at the end of the line, it couldn't be the river. अभी जो exclamation mark दिया है end of the line के, ये क्या एक्सप्रेस करता है और क्या दिखाता है? ऑप्शन एक्साइटमेंट, हेजिटेशन, इरिटेशन, डिसबिलीव. तो एक्साइटमेंट तो नहीं हो सकता है, हेजिटेशन भी नहीं है, इरिटेशन, सो आंसर इज द डिसबिलीव, राइट. सो इस तरह से हम लिख सकते हो. नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज चूज द 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट. और इस एक्सट्रैक्ट में और इस जो दिया लाइन्स हमने पैराग्राफ देखा उसमें रिवर की कौन सी 3 क्वालिटीज हम निकाल सकते हैं जो कि बॉक्स में दिए. यहाँ अफेक्शनेट दिया है, फॉरगिविंग दिया है, थॉटफुलनेस, इम्पेशेंट, काइंड हार्टेड. सो उनमें से हम लिख सकते हैं आंसर अफेक्शनेट है जो बहुत काइंड हार्टेड है, अफेक्शनेट है, thoughtful है and kind hearted. So these 3 qualities we can see in this extract. Next, so next lines or the next paragraph is given here. Can I do something? Asked Janvi. Well, it's up to you, said River. Seems to me little girls can do as much as the little boys. They swim as fast as little boys. अभी यहाँ का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि ऑलरेडी इस लेसन में एक्सप्लेन किया हूँ. आप लाइन्स रीड कीजिए और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है हम डायरेक्टली देखेंगे. कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट रीजन. अकॉर्डिंग टू द रिवर के अनुसार देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज. क्या कारण है? तो आंसर इसी एक्सट्रैक्ट से आंसर निकल कर हम लिख सकते हैं बिकॉज द लिटिल गर्ल्स कैन डू, जो यहाँ पर दिया है, एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज. ओके, सो इस तरह से आंसर हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट से ट्रू और फॉल्स. अब ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स लिखना है. द रिवर एनकरेजेज जानवी. रिवर जानवी को एनकरेज करते, प्रोत्साहित करते टू हैव फेथ इन हर सेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल. यस, इट इज अ ट्रू. आंसर इज अ ट्रू. Next, choose the correct option to complete the sentence. When the river suggests that Janvi should slip along, चुप से निकल जाना आगे, it means that she should move. And options are quickly, casually, quietly, confidently. So, slip ये दिखाता है कि quietly, यानी चुपचाप वहाँ से निकल जाना. Next, what does the repetition of the phrase I couldn't tell us, जो कि ये बार बार लाइन्स है, इसका मतलब क्या होता है? इट शो दैट जानवीज फियर, हेजिटेशन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये दिखाता है. द रेपिटेशन ऑफ एम्फसाइजेस हाउ स्केर्ड एंड अनश्योर शी फील्स अबाउट गोइंग टू स्कूल एंड बीइंग एक्सेप्टेड, राइट. नेक्स्ट question, answer the following question. And first question, why does the writer describe different aspects of nature in a great detail in the beginning of the story? Why do you think the writer does this? जो स्टोरी की शुरुआत में नेचर के बारे में या रिवर के बारे में डिटेल्स में वहाँ पर डिस्क्राइब किया है राइटर, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? द राइटर डिस्क्राइब नेचर इन अ ग्रेट डिटेल्स टू क्रिएट विविड एंड पीसफुल सेटिंग नियर द रिवर. रिवर के आजू बाजू में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है वो डिस्क्राइब किया है. इट हेल्प्स, इससे क्या होता है? इट हेल्प्स द रीडर टू कनेक्टेड द जानवीज वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस द मैजिकल ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल प्रेजेंस ऑफ द रिवर. यानी जानवी का वर्ल्ड क्या है, जानवी की किस तरह से थिंकिंग है, जानवी का बिहेवियर कैसा है, इससे दिखाई देता है. द नेचुरल सराउंडिंग्स आल्सो रिफ्लेक्ट द जानवीज इमोशनल स्टेट एंड सेट द टोन ऑफ फॉर द रिवर्स वॉइस टू एमर्ज द नेचुरली. सो ये सब दिखाने के लिए ये डिस्क्रिप्शन दिया है राइटर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ डिड रिवर नो सो मच अबाउट जानवी. रिवर को जानवी के बारे में बहुत सारी बातें कैसे पता है? और इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं. द रिवर न्यू सो मच अबाउट जानवी बिकॉज शी विजिटेड द रिवर बैंक ऑलमोस्ट एवरी डे. द रिवर ऑब्जर्व हर क्लोजली. रिवर ने वो हर दिन वहाँ आती है और रिवर वो क्लोजली उसने देखा है उसको. लिसन टू हर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड अंडरस्टूड हर ड्रीम्स एंड स्ट्रगल्स जस्ट लाइक ए क्वाइट केयरिंग फ्रेंड. सो यहाँ पर रिवर को एक ह्यूमन बीइंग्स की तरह क्वालिटी उसमें दिखाया राइटर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवी सेज and I am so old now, they will never let me go. What can you infer about the Janvi and the school from this line? अब इस लाइन से तो आपको क्या समझ में आता है? This line shows that Janvi feels hopeless and fears she has missed her chance to go to school, right?
It also implies that children usually start schools to younger age and she worries that she is now too old. वो बहुत ही अब बड़ी हो चुकी है, अभी वो स्कूल नहीं जा सकते, ऐसा उसे खुद को फील होता है. And accepted or fit in. It reflects her deep desire and sadness at being left out. अब मैं स्कूल नहीं जा सकती और जाने की उसकी बहुत इच्छा है, अभी वो कंप्लीट कभी नहीं हो जाएगी. इस तरह से एक इमोशन यहाँ पर मेंशन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डिड द रिवर लाफ व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्कैर्ड एट स्कूल. The river laughed because it knew how brave Janvi really was. She wasn't afraid of the thing like lizards, snakes or loud trains. Yet she feared going to school. The river found it amusing and pointed out that she had more courage than she believed. So इसलिए वो river laugh करती है. Next question, why should Janvi follow the river's advice? Answer, Janvi should follow the river's advice because it encourages her to be brave, take the first step and believe in herself. The river understands her feelings and motivates her to try rather than give up. It advises, helps her to break through her fear and work towards her dream of learning, right? Next question, how does the conversation between Janvi and the river make the story more appealing? जो यहाँ पर दिखा है कि जानवी और रिवर एक दोनों का संभाषण दिखाया है, बोलना दिखाया है, इस तरह एक अपीलिंग, एक बहुत हमें हार्ट टचिंग स्टोरी लगती है. ऐसा क्यों? Because the conversation between adds magical and imaginative elements to the story. It makes the river feels like a wise, comforting friend. रिवर को इस तरह से दिखाया कि जानवी का एक कंफर्टेबल, एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड दिखाया है. दिस यूनिक डायलॉग ऑल्सो ब्रिंग्स आउट जानवीज थॉट्स एंड इमोशंस इन नेचुरल वे, मेकिंग द स्टोरी हार्टफेल्ट एंड एंगेजिंग, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन मैसेज दैट द राइटर इंटेंड टू कन्वे. इस स्टोरी में से राइटर ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है? द मेन मैसेज इज that every child, especially girls, deserve the right to education. That is the main message. It encourages the children to believe in themselves, overcome the fear and follow their dreams. The story highlights the courage, equality and the importance of support and encouragement from others, right? So these question answers are completed here. Now next activity, that is let's learn. And the question, you have learned that naming words are called, this activity is related to the grammar. You have learned that naming words are called nouns. Okay, only proper nouns begins with the capital letters, we know very well. Why has the author used the capital letter for the river? Actually it is a common noun. Then also it is used as a capital letter, beginning letter is a capital, and capital beginning letter is given only for proper noun, even when it is a common noun. Okay, the reason is that the author has used capital letter for the word river because the river has been personified. It is given as a human quality. वो human जैसा इस river को दिखा है, जैसे proper noun जैसा. So that is why, like speaking, laughing, thinking and advising Janvi, by treating the river like a character, the writer used the capital letter to make stand. जैसे उसका एक फ्रेंड है, पर्सनल फ्रेंड है, इस तरह से दिखाई, इसलिए उसे प्रॉपर नाउन की तरह दिखाई, इसलिए कैपिटल लेटर वहाँ पर लिखा है. नेक्स्ट, देयर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू द साउंड इन द टेक्स्ट. पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन. यहाँ कुछ डेफिनेशन दिया है और स्टोरी में कुछ साउंड मेंशन करने वाले वर्ड्स आए हैं, जैसे कि मेड हाई पिच पायर्सिंग साउंड, जोर से चिल्लाना जैसा, और श्रिंकिंग जैसा आवाज. अभी देखेंगे कौन से डेफिनेशन के लिए कौन सा साउंड, एक्सेप्ट हम डायरेक्टली देखेंगे. जैसे कि हम देख सकते हैं मेड हाई पिच पायर्सिंग साउंड, ऐसे श्रिक्ड, बहुत जोर से आवाज करना, चिल्लाना. टू कॉज लिक्विड स्ट्राइक टू फॉल समथिंग, जैसे पानी में जोर से कुछ फॉल डाउन होते तब कैसा आवाज आता है, स्प्लैश, ये साउंड आता है. नेक्स्ट, अ लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज, मर्मरिंग साउंड उसे बोलते हैं. क्राई विथ लाउड अनकंट्रोलेबल गास्प, सॉबिंग, रोना. टू मेक ए सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, रसलिंग साउंड, जैसे पत्तों का आवाज आता है, रसलिंग साउंड. टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रीथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज, पेन और शॉक, जैसे हम ऐसा आवाज करते हैं उसे गास्प बोलते हैं, राइट. शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूसली शॉर्ट शार्प साउंड्स,
दैट इज रैटलिंग, खड़खड़ खड़खड़ ऐसा आवाज. मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज, दैट इज नॉइजी. Made a long high cry, usually because of the pain or sadness, that is wailed, cried, like this. So these are the sounds and these are the definition. Next activity, now fill in the blanks with suitable sounds, sound words. अभी sound words का यहाँ use करना है और ये lines complete करना है, right? The classroom grew dash dash as the students noticed the teacher carrying the answer paper. जैसे स्टूडेंट देखा कि टीचर ने आंसर पेपर क्लासरूम में लाए तो स्टूडेंट का किस तरह का आवाज़ आया है, तो यहाँ एक नॉइजी, राइट. सो यहाँ देख सकते हैं आंसर. एज द टीचर टर्न द पेजेस विथ डैश डैश, रसल द चिल्ड्रंस, रसल. नेक्स्ट, गास्प वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड, someone wailed in frustration and the murmuring of the students steadily increased. Finally, when the teacher praised the student for their excellent performance, the student shrieked with excitement. So these words we have used here, and that is this is the answer. Next, the word catamaran is used in the text. Catamaran का यहाँ जो छोटी बोट बोलते हैं उसके लिए यूज़ किया. द वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम तमिल लैंग्वेज का कटुमैरम, ये तमिल लैंग्वेज से ये आया हुआ ये यूज वर्ड है. मीनिंग टाइड वुड इसका होता है. फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज में ऐसे कुछ वर्ड्स है जैसे कि कर्मा, साहेब, वरदान, जंगल, कन्वे. अब इसका मेन ओरिजिनेट कहाँ से है ये इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है, जो कि हम आंसर में देख सकते हैं. कर्मा जो दो इसका जो मीनिंग होता है, द बिलीव दैट पर्सन्स एक्शन डिटरमिनिंग देयर फ्यूचर और फेट और रिबर्थ, दैट इज अ संस्कृत वर्ड है, संस्कृत से आया हुआ है. साहेब जो साहेब बोलता है जैसे कि रिस्पेक्टफुल टाइटल है जो कि उर्दू और हिंदी में से यूज़ किया जाता है. हाँ, चटनी जो यूज़ किया जाता है स्पाइसी, राइट, स्पाइसेस योर कॉन्डिमेंट मेड बाय सुची, हिंदी वर्ड है. देन गुरु जो स्पिरिचुअल लीडर और टीचर के लिए कहा जाता है, गाइड के लिए, जो संस्कृत वर्ड है. देन वरंडा जो कि घर के हाउस के सामने की जो जगह होती है, रूफ प्लेटफॉर्म अलॉन्ग आउटसाइड द हाउस, पॉर्च, दैट इज़ हिंदी और पोर्टुगीज वर्ड है. जंगल ये जो डेंस फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, हिंदी और संस्कृत से आया हुआ वर्ड है. एरिका सो टाइप ऑफ पाम ट्री के लिए यूज़ किया, मलयालम और तमिल वर्ड से. एंड पैलेनिक्यून इज कवर्ड विद लिटिल फॉर वन पैसेंजर, दैट इज़ द संस्कृत वर्ड है. सो इस तरह से वर्ड के ओरिजिनेट यहाँ पर दिखाइए. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, चंदू द फिशर मैन हैज़ अ कैटामैन. कैटामैन की चंदू कीजिए, फिशरमैन इसमें स्टोरी में मेंशन किया है. रिवर प्रीफर टू शिप, गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब ये जो इसे कैनोई बोलते हैं, दिस ऑफ बोट इज कॉल्ड कोरैकल एंड शिकारा, जो कि जम्मू कश्मीर शिकारा इसमें यूज़ तालाब में यूज़ किया जाता है. विच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन. अब इसी में से आपको किस बोट से ट्रैवल करना पसंद करोगे, इस तरह से आंसर आप लिख सकते. आई वुड लाइक टू ट्रैवल इन शिकारा बिकॉज इट लुक्स कंफर्टेबल एंड ब्यूटिफुल. इट हैज़ अ रूफ to protect from the sun and rain, and I can enjoy the peaceful water views while sitting inside. It reminds me of the boats in Kashmir, right? So this type of answer you can write. One more activity, that is the solve the crossword puzzle based on the words related to the transport. ये puzzle आपको solve करना है. इसके वर्ड्स अक्रॉस वर्ड्स एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके लिए वर्ड्स लिखना है. डाउन वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है. जो आंसर यहाँ पर दिया है, अक्रॉस के लिए फर्स्ट में शिप, बोट, राफ्ट, ये जो आप लिख सकते हैं डाउन के लिए, राइट. ये आप देखकर वो कंप्लीट आपको करना है, राइट. नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज रिलेटेड, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट. अब यहाँ पर जो लाइन्स है उसके हाईलाइटेड वर्ड देखिए. शी गोज डाउन टूवर्ड्स the sea, right, towards उसकी ओर. I have seen her. She always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. अब यहाँ जो यूज़ किया है towards and down, prepositions are words that are indicated. preposition जो कि indicate करता है relationship between nouns and pronouns. So ये preposition highlighted words है. direction अभी क्या शो करे, they show direction, location, time and logical relationship between ideas, right. Now fill the blanks by suitable preposition का ब्रैकेट में दिया, इसका यूज़ करके लाइन्स कंप्लीट करना चाहिए. कि जानवी टेक द रिवर्स एडवाइस एंड गोज टू स्कूल ऑन हर फर्स्ट डे डैश डैश, ऑप्शन एट इन ऑन स्कूल. जानवी स्टूड नर्वसली. अब ये
इसके लिए हम डायरेक्टली आंसर देखेंगे, राइट। ऑन फर्स्ट एट स्कूल, कहाँ गई, एट स्कूल। जानवी स्टूड नर्वसली आउटसाइड द गेट, आउटसाइड ये जो प्रीपोजिशन हमने आंसर लिखा है, right, clutching her bag close to her. The bell rang and she hurried inside the bustling classroom. She found a seat between two friendly, दोनों के बीच में, and the teacher greeted them warmly and started lesson about, right. And next, last one, that is Janvi's listen attentively, feeling excited about new adventure ahead. So this type of प्रीपोजिशन वी हैव यूज। सो ये ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटी थी। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये भी उसी तरह से प्रीपोजिशन। किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, किंगफिशर स्वेप्ट डाउन एंड एरो ऑफ अ ब्लू इन द सनलाइट। वर्ड्स लाइक ऑन, ऑफ, अप, डाउन कैन फंक्शन बोथ द प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब्स। इसका यूज होता है प्रीपोजिशन के लिए भी और एडवर्ब्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी रैन अप, यहाँ अप एक क्या है, प्रीपोजिशन है। शी रैंग मी अप, यहाँ अप क्या है, एडवर्ब है, राइट, लाइक दिस। अब यहाँ पर देखिए, रिमेंबर अ प्रीपोजिशन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट नाउन। अभी आगे डेफिनेशन दिए, प्रीपोजिशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन और एडवाइज, हाँ एडवर्ब, दोनों में से एक आपको सुटेबल है जो लिखना है। द कैट जम्प्ड डैश डैश द टेबल, अब प्रीपोजिशन कौन सा आएगा। द चिल्ड्रन प्लेड डैश डैश अंटिल डार्क, एडवर्ब, अभी एडवर्ब लिखना है। अभी आंसर इसका देखिए, द कैट जंप ऑन टू द टेबल, ऑन टू प्रीपोजिशन है। द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड, एडवर्ब। द क्विकली रैन थ्रू द पार्क, प्रीपोजिशन। द हेलीकॉप्टर वॉज hovering above, we were just walking along, along एक है, एडवर्ब है। After thoroughly wiped his shoes, he stepped inside. She drove slowly around. Around क्या है, प्रीपोजिशन। He placed the key under, प्रीपोजिशन। So इस तरह से कंप्लीट हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज लेट्स राइट, राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। ऑब्जर्विंग नेचर, जो हमारे आजू बाजू में जो नेचर होता है उसका ऑब्जर्वेशन करना। जिस तरह से ये नेचुरल एक इमेज दिखाई है, trees are there, green grass है, different types of colorful flowers are there, birds are there. Take some time to observe the world around you over the next few days and pay attention the color, shapes, patterns and texture found in nature. So all these things you can observe in natural aspects. Look closely the plant, trees, flower, birds and ये सब observe करने के बाद आपको क्या करना है। Now write the descriptive paragraph based on what you observe. आपने क्या observation किया है, जैसे इसका भी लिख सकते हो, उसी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। यू हैव टू गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर योर पैराग्राफ। राइटिंग स्किल, ऑब्जर्वेशन, नेचुरल जो यहाँ के एक गार्डन बोल सकते हैं या इसी यहाँ का जो फॉरेस्ट का एरिया बोल सकते हैं, और उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। सो किस तरह से लिखेंगे, राइट, आइडियाज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व देयर, कुछ यहाँ कुछ आपको पॉइंट दिए, एवरी डे आई सी आई फाइंड, इस तरह से लाइन का आपको यूज़ कर सकते हैं। हाउ डू यू फील, वाई, आपको कैसा लगा ये ऑब्जर्व करने में, आई लाइक बिकॉज आई फील लाइक दिस। व्हाट इज योर मैसेज टू एवरी वन अराउंड यू, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट माई एडवाइस। सो दिस टाइप ऑफ sentence you can use while writing a paragraph. So let's see the answer. I have given here the title, the beautiful colors of nature, जो observation किया है, और paragraph इस तरह से देखिए। Every day I see nature outside my windows. Each morning is a different. Sometimes I hear the soft sound of the grass moving. I see birds flying with colorful wings, red, yellow and blue. Flowers blooms in bright colors like purple, orange and pink. Their petals feel soft. The trees are tall and their green leaves move in the wind. I like watch the sunlight shine through the leaves. I looks like a gold on the ground. I feel happy and peaceful when I see butterflies flying from one flower to another. They move so gently like a quiet breeze. I want to tell you that nature has its own way of talking through colors, sounds and the way things feel. My advice is take time to look at nature. It is full of beauty just waiting for you to see. So this type of paragraph you can write. So this activity was related to your writing. So इसका जो क्वेश्चन आंसर जो भी हमने एक्टिविटीज और एक्सरसाइज लिखा है, इसका PDF फॉर्म में मैं अपना जो एक वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर englishforlearner.com, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दूंगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिलेगा और वो PDF आपको डाउनलोड करके
आपके नोटबुक में लिख सकते हो। सो इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो, उसका एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड शेयर इट। इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। विश यू गुड डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।